Okay, students, welcome back. In this today's lecture, what we are going to see is let's take a recap of what we have done in the previous lecture. Okay, previous lecture we started with the topic called atom size, mass, and valency. We are studying about atom, the size, mass, and valency. We saw how do you define the atom size and the atomic mass or the atomic mass number definitions we have seen, and we have also seen certain properties related to atomic size. Okay, and atomic number, why hydrogen was taken as the standard for measuring the atomic size, we have studied that also. But we also saw that in today's world we have got highly accurate methods of measuring the relative size or the mass of, not relative but actual size and mass of the atom can easily be found with हाईली एक्यूरेट्स मेथड एंड मॉडर्न टेक्निक्स. आज की तारीख में सब कुछ साइंस बहुत डेवलप हो गया है. ओके, देन वी मूव्ड ऑन टू अनदर टॉपिक. वी केम टू दिस पर्टिकुलर नंबर दैट वाज यूनिफाइड मास वाज एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ, बराबर, एज द यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास. अ यूनिफाइड मास नंबर वाज एक्सेप्टेड एंड इट वाज कॉल्ड डाल्टन in respect of Mr. Charles Dalton, who was the father of the modern atomic theory. Okay, डाल्टन मालूम है ना, वी स्टार्टेड द लेसन विद डाल्टन इटसेल्फ. ओके, तो ये सिंबल को दे गेव इट, जैसे किलोग्राम, ग्राम और ये होता है, वैसे इस पर्टिकुलर नंबर को दे गेव द सिंबल एज यू एंड इट वाज कॉल्ड एज डाल्टन. ओके, देन वी जस्ट स्टार्टेड विद केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड वी वर डूइंग दिस. ओके, every element or every chemical, okay, is given with some symbols. We saw some symbols over here. H stands for hydrogen, O stands for oxygen, N stands for nitrogen, and the atomic masses has been given. But we also have something called as molecular formula, whereas the first one is, you can see, NaCl, MgCl2. Now NaCl is sodium chloride, MgCl2 is magnesium chloride. Then we have potassium nitrate, KNO3, H2O2 hydrogen peroxide, AlCl3 is aluminium chloride, CaOH2 is calcium hydroxide, MgO is magnesium oxide, H2SO4 is hydrogen sulfide, but it is commonly known as sulfuric acid. Okay, uska common names is used more rather than the chemical name. Okay, then we have HNO3, that is hydrogen nitride. Okay, hydrogen nitride, HNO3, but it is also commonly known as nitric acid. And sodium hydroxide, NaOH. Na stands for sodium, OH stands for hydroxyl. Okay, ये molecular formula है. I read it for you so that ये तुम लोगों को याद रहे. एंड अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा रिवाइंड करके सबका नाम वापस से एक बार देखो, लिख लो एंड बाय हार्ट कर लो, बिकॉज यू कैन गेट दिस in your exam. They will put the name in the, they will put the molecular formula and you have to write down the name of that particular chemical, or they will give the name of the chemical, you have to write the molecular formula. Okay, 1 मार्क के लिए आएगा ये. आ सकता है नहीं, आएगा ही. टीचर 2 से 3 डालेगी, ऐसा कोई भी molecular formula डालेगी, you have to put the name. Okay, now how do we, ये chemical symbols and molecular formula हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? We have to learn that. There was a scientist by the name Berzelius. Okay, नाम से ही समझ में आता है, इंडियन तो नहीं होगा ये, बराबर है. You must be wondering कि हमारे इंडियन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर से इंडियन लोगों ने कुछ फाइंड किया, नहीं किया. बेटा तू क्या है, इंडियन है, बराबर. तू क्या कर रहा है, सबका थियोरी पढ़ के स्कॉलर बन रहा है, बस इंडियन लोगों ने वही किया है. ओके, और कुछ नया ढूंढने का है, नया कुछ करने का है, तो बहुत एक्सपर्ट बनो ये सब चीज़ों के अंदर, एंड देन यू complete your BSc, MSc and do your PhD, और कुछ नया ढूंढ के निकालो. ओके, फिलहाल we just concentrate on this. According to the method, the symbol of an element, कैसा चूज़ किया गया symbol of an element? This idea was given by Berzelius. Therefore, in his honor, the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, they have named this particular method. In his honor, they have given the method his own name by Berzelius. Okay, so by Berzelius method,
The symbol of an element is either the first letter or the second letter or any other specific letter in the name of the two letters. The first one is always written capital and the second one is written small. Okay, second letter can be anything. It can be the second letter alphabet of the name or can be any other specific alphabet. स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट मतलब पूरा स्पेलिंग के अंदर वो अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता रहेगा. दैट इज समथिंग विच वी कैन मेक आउट ईजिली. ओके, सच बिकॉज ऑफ सच मेथड वी स्टार्टेड यूजिंग दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecules of element and compound. Okay, now molecules of element and compound, this is something for which I need to explain you with some diagrams. So just a minute, I'll have to make some diagrams in the diary first of all and then I'll explain this. Okay बच्चा लोग, welcome back. Now हम लोग क्या कर रहा था, वी वर डूइंग केमिकल सिम्बल्स एंड एलिमेंट. देन वी स्टार्टेड द टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. हाउ आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स और वट एवर द केमिकल इट मे बी, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड दे रिक्वायर either to share their electrons with someone else or give or take electrons to complete the octet. Now what is octet? Let's come once again over here with the Dalton's theory. We have बीच में न्यूक्लियस है, देन वी हैव फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. बराबर, मैंने ऑर्बिट का बताया आपको कैसा रहता है. उसका कैपेसिटी 2, 8, 18, 36, 72 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस. ये हम लोग पढ़ेंगे आगे. व्हेन इन 10th यू आर गोइंग टू स्टडी विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, एट दैट टाइम वी विल सी कॉन्फ़िगरेशंस. इससे भी बड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वो टाइम. ओके, प्रेजेंटली इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. प्रेजेंटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज 2, 8, 18, क्योंकि इससे बड़ा अभी एलिमेंट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी with any elements which is having a size bigger than 3 orbits. फिलहाल your lesson is only limited up to this much. Okay, so now the capacity of the first orbit is 2 electrons, the capacity of second is 8 electrons, the capacity of third is 18. Okay, but for stability, okay, let's consider this as a fort. एक किला है, एन एटम इज़ अ किला. ओके, आणि बॉर्डर का सिक्योरिटी के लिए, आउटर ऑर्बिट का सिक्योरिटी के लिए दे रिक्वायर मैक्सिमम, इसका कैपेसिटी 18 है. देयर कैन बी 18 सोल्जर्स हु कैन स्टैंड एंड हु कैन गार्ड द फोर्ट, बट द मैक्सिमम दे रिक्वायर, ओके, जस्ट टू कीप अ वॉच एंड टू कीप अ लुक एट द सिक्योरिटी. पहारे द्यायला त्यांना फक्त 8 लोक, 8 सैनिक पुरे इन द 8 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट. 8 डायरेक्शन में 8 लोगों को जमा कर दिया. ओके, सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन एनी इलेक्ट्रॉन, वेदर इट मे बी द थर्ड ऑर्बिट और इट मे बी 5th ऑर्बिट और द 10th ऑर्बिट. ओके, इट्स ओनली आई एम गिविंग एग्जाम्पल. एक्चुअली ऐसा 10 और 20 ऑर्बिट्स वाला एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. ओके, क्यों, वो रीज़न हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाने का ज़रूरत नहीं है. लेट्स स्टिक टू द सिलेबस. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट. दैट इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट. द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज़ नॉट द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 रहता है. Okay, so we need 8 electrons so that the element becomes stable. So at that particular time stability के लिए पुराने राजा महाराजा क्या करते थे, अड़ोसी पड़ोसी के साथ दोस्ती करते थे. They used to share their armies, they used to share things like that. बराबर. तो एटम भी हमारे क्या करते हैं, एटम दो दे आर considered as नॉन लिविंग ऑर्गन्स और नॉट लिविंग थिंग्स, बट थियोरी वही फॉलो होता है एज पर डाल्टन. ओके, एंड एज पर द अदर साइंटिस्ट ऑल्सो. लेट्स सी what do you mean by molecule. When 2 or more atom they combine with each other either by sharing the electrons or give and take of
इलेक्ट्रॉन घेऊन देऊन सुद्धा जर त्यांचा ऑक्टेट कंप्लीट होतो आहे, ओके, ते डू वॉट एवर दे वॉन्ट. इन केस सर्वात बेस्ट एक्झाम्पल आहे आपल्याला वॉटर, H2O. ओके, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर 16, बराबर. सो इट गोज, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अभी यहाँ मैंने पूरा ऑर्बिट्स बनाया नहीं बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पूरा बनाने के लिए. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज हैविंग 6. ओके, what is the capacity they want? They want 8. So they are falling, oxygen is falling short of 2 electrons. Okay, hydrogen is having only 1. तो 2 हाइड्रोजन का एटम what they do, they are having 1 electrons, बराबर है. So they combine with oxygen and they share their electron by getting 2 electrons from the 2 adjoining hydrogen. ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का. ऑक्सीजन एटम स्टेबल हो गया, बराबर है, स्टेबिलिटी मिल गया उसको, सब जगह से सेफ हो गया वो. हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा हो गया? हाइड्रोजन वॉज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. टू कंप्लीट हिस ऑक्टेट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोर, बिकॉज उसका एक ही ऑर्बिट है तो उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था. एक उसके पास है, एक ऑक्सीजन से शेयर कर लिया उसने और कंबाइन हो गया. दूसरा ने भी वही किया, कंबाइन हो गया. दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया एंड ऑक्सीजन शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स विद द हाइड्रोजन. सो दे ऑल 3 ऑफ देम कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट एंड फॉर्म्ड वाटर. दैट इज़ द रीज़न वाई अभी ये लोग ये बॉन्डिंग छोड़ नहीं सकता है, बिकॉज अगर छोड़ेगा तो इनका स्टेबिलिटी चला जाएगा. इसीलिए एटॉमिक लेवल के ऊपर दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट इज़ द रीज़न यू सी दैट वाटर इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बराबर. अगर ये इजीली डिसइंटीग्रेट हो सकता था और ये बॉन्डिंग टूट सकता था, थैंक गॉड ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो जो 1 ग्लास पानी तुमने पिया था वो तुम्हारे बॉडी को न्यूक्लियर बम की तरह फोड़ देता था, बराबर है. डू यू अंडरस्टैंड? इफ़ एटम्स ब्रेक इनटू पीसेस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इतना एनर्जी पैदा करेगा कि तुम लोग खड़े खड़े ब्लास्ट हो जाओगे. एंड द वाटर, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑन अर्थ, विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रैप. ओके, डोंट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट. मॉलिक्यूल समझ में आया? व्हेन atoms of some element, okay, atoms of some element, they combine with other element, atoms of other element, or they even combine with atoms of same element. हाइड्रोजन कैन कंबाइन विथ हाइड्रोजन. ये दोनों को एक ही चाहिए आपस में. क्या करेगा वो लोग? आपस में दोस्ती करके, आपस में शेयर करके भी H2 बन जाएगा, बराबर. लेट्स सी हियर, आई हैव ड्रॉन दिस फॉर यू. हाइड्रोजन, 1 atom of hydrogen having 1 electron, another atom having 1 electron. They both combine with each other, they share their electrons and complete their octet. समझ में आया? That is why hydrogen atom always exists in H2. 2 atoms exist together. Similarly, oxygen, 2 atoms exist together because oxygen इसको दो, it is falling short of how many? 2 electrons. So both 2 atoms can combine and they can share 2 electrons आपस में and they form O2. Similarly, it goes for N2 also, that is nitrogen. Okay, nitrogen is falling short of, nitrogen का क्या है? 14. So it is falling short of, in the outermost orbit there is only 4. They require 4 more. 4 electrons चाहिए शेयर करने के लिए, बराबर. तो both the atoms what they can do, they combine together and they share 4 electrons. I am not अंदर वाला ऑर्बिट्स बनाया नहीं मैंने, because that is not important. Okay, outer most orbit में they are sharing 4 electrons. इधर से 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन उन लोगों ने शेयर किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली शेयर हो रहा है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. इधर इतना जगह नहीं है तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा. बट आई थिंक द आइडिया इज़ प्रिटी क्लियर टू यू. ओके, नाउ H2, O2, N2. Now these elements, they can combine with the atom of their same type. The same element can combine with each other. Hydrogen can combine with hydrogen atom and can attain stability. Such combination, okay, when the atoms combine to attain stability, that is called molecule. Molecule समझ में आ गया क्या है? इधर तक molecule समझ में आ गया ना. Now hydrogen can combine with their own element atom and can attain stability.
So hydrogen, oxygen and nitrogen, which have the property to combine with their own elements to attain stability, such elements are called monoatomic element. Okay, monoatomic, they can combine with their own elements. ज़रूरी नहीं कि if they can combine with their own element, they will not combine with any other chemical. They can. I have taken a small example for you. नाइट्रोजन हम लोगों ने देखा, नाइट्रोजन के पास ही 4 इलेक्ट्रॉन लेस है. ओके, सो नाइट्रोजन इन केस इफ इट डिसाइड्स टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन, कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन इज़ वेरी इजी, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एटम अवेलेबल, स्मॉलेस्ट एटम नोन इन दी ऑल द नोन एलिमेंट्स. वॉट एवर अभी तक हम लोग को जितना एलिमेंट्स मालूम है, सबसे छोटा हाइड्रोजन है. बराबर है. सो एंड इट इज़ वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स विथ एनी अदर केमिकल, इमीडिएटली कुछ ना कुछ हो जाता है. बराबर, कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बना लेता है. सो इफ़ नाइट्रोजन वॉन्ट्स टू कंपेयर विथ हाइड्रोजन, हाउ मेनी falling short of 4 electrons, so it has to combine with 4 hydrogen atom and share their single atoms. बरोबर. so N will pair with 4 of hydrogen atom and it will give you NH4. this is called ammonium. Okay, students always get confused between ammonium and ammonia. This is NH3. NH3 is called ammonia. If it combines with 3 atoms of hydrogen, then that is known as ammonia, which is a gas, gaseous state मध्ये, and this is ammonium. okay, कहाँ से आता है वो हम लोग बाद में देखेंगे. आगे का लेसन्स के अंदर बायोलॉजी में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट अमोनिया. ओके, सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया. दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दे कैन कंबाइन विद देयर सेम एलिमेंट्स टू complete their octet or attain stability. बराबर. now if an element combines with other and form some compound, so they are called as diatomic. okay, if it combines with 2 other atoms then any other atom, so it will be diatomic. और वो 2 से ज़्यादा किसी और अलग अलग एटम से अगर कंबाइन करता है, so they are called as polyatomic. okay. अरे यार प्रोनाउंसिएशन में भी लफड़ा हो रहा है. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, हम लोग ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. होप दिस थिंग इज प्रीटी क्लियर. ओके, इफ इट इज़ क्लियर, लेट्स रीड आउट व्हाट वी हैव कवर्ड फ्रॉम द लेसन. वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. Atoms of some elements such as helium, neon have independent existence. हीलियम नियॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है वो एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, वो कर दूंगा बाद में. हीलियम एटॉमिक नंबर इज़ 2. दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिट एंड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब क्या है, उसको किसी से हाथ मिलाने का ज़रूरत है नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. नियॉन का भी वैसा ही केस है. ओके, नियॉन का आई डोंट रिमेंबर द एटॉमिक नंबर राइट नाउ, विल सी आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर इनर्ट गैसेज. उनको कोई फर्क नहीं पडता, आजू बाजू में कोई भी केमिकल आने दो, दे डोंट रिॲक्ट विथ एनीवन. ज़रूरत ही नाही आहे, गरजच नाही आम्हाला. आम्ही खुश आहे आमच्या बाउंड्रीमध्ये, त्या पद्धतीमध्ये ओके, सिमिलर आहे ना. बराबर आहे. तुम्हारे पास भी अगर सफिशियंट सब कुछ आहे, आता लॉकडाऊनमध्ये बघा घरी राशन भरलेलं आहे, तर काय गरज आहे बाहेर जायची, कोणाला भेटायची. बरोबर. राशन संपल्यानंतर प्रवासी मजदूर चालायला लागले गावाकडे. बरोबर, बिकॉज आता त्यांच्याकडे कोई दूसरा रास्ता नहीं है. इफ़ यू डोंट हैव एनी रीज़न, सिमिलरली इट गोज़ विथ ईच एंड एवरीथिंग. सो हियर ऑल्सो एटम क्या है, नियॉन एंड हेलियम, देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे डोंट नीड, किसी का मेहरबानी नहीं चाहिए, हम अपने आप में खुश है. बराबर. बट द अदर एलिमेंट्स, रीड फर्दर, it means that these elements are in monoatomic molecular stage. they combine only with their, वो अकेला भी जी सकता है, इसलिए दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट. ओके, थोड़ा फ़र्क हो गया मेरा इसमें. चलो ठीक है. समटाइम्स 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जैसा हम लोग ने देखा N2O2 H2 में. ओके, सच एग्जाम्पल्स आर कॉल्ड एज to form the molecular
of that element. Such elements are called as polyatomic molecular state. Okay, ठीक है, खाली इधर मोनोएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है. अच्छा है, बच गया तुम लोग. ओके, मतलब हम लोग ने बाइनोमियल किया था ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब लफड़ा इधर नहीं है. इधर खाली मोनोमियल है और पॉलिनोमियल है. बराबर है, बच गए हम लोग. So for example, the element oxygen and nitrogen are in a diatomic molecular stage. नहीं, diatomic आ गया, देख, O2N2. बराबर है, वही मैं बोला. मैं रॉन्ग कैसा हो सकता है? ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग 3 साल तक तो था ना. केमिकल इंजीनियरिंग हम लोग को भी पढ़ना था. 3 साल तक तो पढ़ाई है. 4th ईयर के अंदर टोटली मैकेनिकल में घुसता है. बराबर, तो भूल कैसे सकता है मैं? चलो ठीक है, वही मैं भी कंफ्यूज हो गया. Read this. The elements of oxygen and nitrogen are in a diatomic state. So they are called as diatomic molecular state, O2 N2 respectively. When atoms of different element combine with each other, अपन example घेतलं होतं nitrogen and 4 hydrogen atoms. Okay, with each other the molecule of the compound are formed. In other words, compounds are formed by chemical attraction between elements. Okay, उससे ऊपर मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के ऊपर जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक. सो नीड नॉट वरी अबाउट वॉट एवर इट मे बी. आई गेव यू अ सिंपल एग्जाम्पल हाउ इट इज फॉर्म्ड. इट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरंट एलिमेंट. केमिकल अट्रैक्शन म्हणजे नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस एक दूसऱ्यांना अट्रैक्ट करता है, बट दे आर नॉट इन अ रेडिकल फॉर्म. तो पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल नहीं होता है, बट द अर्ज और द रिक्वायरमेंट टू अटेन स्टेबिलिटी, अपने एटम को स्टेबल करने के लिए, बराबर, खुद के सेफ्टी के लिए वो लोग एक दूसरे से कंबाइन कर जाते. दे हैव गिवन यू, टेक्स्ट बुक वालों ने कुछ बोला है, मेक अ लिस्ट ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स. यू हैव टू मेक अ लिस्ट. तो ये आप लोगों को देखना है इसमें से आप क्या क्या कर सकते हो. गिव मी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स. ओके, दिस यू विल पुट अ मैसेज ऑन द टेलीग्राम, अपना ग्रुप के ऊपर डालोगे. मोनो एटॉमिक में क्या क्या है तुमको लग रहा है? मोनो एटॉमिक का 3 एग्जाम्पल तो मैंने ही तुमको दिया है. डायटॉमिक में ढूंढ के निकालो. ओके, आफ्टर दैट टॉपिक इज कंप्लीट. नाउ वी कम टू मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल. ओके, मॉलिक्यूलर मास इज समथिंग, अभी वी आर डूइंग द सेम थिंग. एटॉमिक मास हम लोग ने किया था, बराबर. इट वॉज द टोटल ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास. सो व्हाट वाज एटॉमिक मास? Atomic mass was total mass of proton plus mass of neutron. बराबर, यानी मतलब total mass of nucleon. Similarly, molecular mass क्या रहेगा? As per Dalton, the atomic masses, you have to combine the atomic masses. आता वॉटरच्या याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? Molecular mass is a combination of different atoms to form molecule. तो mass क्या रहेगा? Mass will be the total of all the atoms that have unified or that have united to form the molecule. molecule बनाने के लिए 2 एटम लगाए, 4 एटम लगाए, 10 एटम लगाए, doesn't matter. molecular mass उसका will be the sum of all the atomic masses of all the atoms that have joined. समझ में आया molecular mass का concept? now this molecular mass, how to calculate molecular mass? as per the definition, you already know how to calculate. Now let's assume here it is hydrogen 1, oxygen. Atomic masses have been given: nitrogen 14, carbon 12, K 39. K is potassium, S stands for sulfur, Ca stands for calcium, sodium that is 23, chlorine is 35.5, etc, etc. If you want to find the molecular formula has been given to you. If you want to find molecular mass, how will you find? सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ अवर कॉमन सॉल्ट. बराबर है, कॉमन सॉल्ट रहेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास विल बी 1 एटम ऑफ सोडियम, दैट इज 23, प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5. सो 23 प्लस 30.5, 35.5 करो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा माइट बी समथिंग अराउंड 5, 6, 7, 8, 9, शायद 59 जा रहा है, 59.5 समथिंग कुछ आएगा. ऐड करके देखो, जो आंसर आएगा दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl, NaCl, सॉरी NaCl ले रहा था ना हम लोग.
Okay, in case of MgCl2, what you will do is, magnesium is 1 atom and chlorine 2 atom. Okay, so we'll take magnesium. Magnesium का क्या है? They have given, अच्छा magnesium is here. Atomic mass is 24 and chlorine का mass कितना है? 35.5. But there are 2 chlorine atoms. So what we'll do? We'll add 24 plus 35.5 plus 35.5. 35.5 मतलब 71 हो गया. 71 प्लस 24 95. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो गया? वेट नॉट वेट, मॉलिक्यूलर मास विल बी 95. ओके, नाउ 2 का तो मैंने आपको वर्बली करके बता दिया. योर टेस्ट फॉर टुडे विल बी, यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑन अ पेपर. वर्किंग करके बताओ मेरे को. KNO3, H2O2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका पूरा एटॉमिक मासेस एड अप करो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स एंड गिव मी द मॉलिक्यूलर मास फॉर ऑल दिस. ओके, NaCl MgCl2 का मैंने बोला है वो भी कर दो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है. 10 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल के तुमको देना है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क.